Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our biodiversity of coded paper. In this video lecture, we are going to discuss about the digestive system of Scoliodon, that is commonly called as dogfish. So let us come to the diagram. So when we are talking about the digestive system, it is the system which just break down the food material from complex to simple form. So the digestive system of Scoliodon consists mouth, then it is having a buccal cavity, pharynx is there, esophagus is there, stomach is there, and then intestine is there, rectum is there, and then finally anus and cloaca is there. So let us come to the next slide. I'll just okay. When we are talking about the mouth, so mouth is ventral in position, which means that it is at the ventral side. You can observe in the diagram which is here. So this is the ventral view of Scoliodon. Mouth is ventral, present at the ventral side. It is having the teeth, and when we are talking about the actually this mouth opens into the buccal cavity where teeth are present. So this okay, buccal cavity is there. So buccal cavity consists of teeth which are homodont type. Now what is mean by homodont? Homodont means all teeth are of same structure and they are having the same composition, which means that they are having such spine type of teeth, spiny like teeth which are backwardly projected, and they are embedded into the skin. No doubt, as being Gnathostomata, this Scoliodon has jaws, but the teeth are not embedded into jaws. They are present only at the skin portion. So I'll explain you. So if you consider this is the jawline and this is the skin. So the teeth will be present at this portion only. They will not embed into the jaw region. Okay, and the development of new teeth occurs whenever the teeth break. The new teeth will immediately or after certain time new teeth will be developed. So they are called as polyphyodont. When we are talking about the human beings, we are डाइफायोडोंट, विच मीन्स दैट कि हमारे टीथ टूट कर दो बार आते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉलेडोन, तो यहाँ पे जब भी कोई टीथ टूट जाएगा फिर से एक नया टीथ जनरेट हो जाएगा. एंड बकल कैविटी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें सलाइवा प्रिपेयर होता है. उसके बाद ये बकल कैविटी ओपन होती है फैरिंग्स में. ओके, तो फैरिंग्स में क्या होता है? फैरिंग्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं लैटरल साइड्स पे, विच आर 5 इन पेयर्स, एंड एक एम्प्टी स्पेस होगा यहाँ पे, एंड देर विल बी अ पिट ऑफ स्पाइरकल ओपनिंग. Now let's come to the diagram. Here you can see the esophagus clearly. So after mouth, buccal cavity and pharynx, esophagus will be there. Esophagus is the mucous membrane. It is made up of mucous membrane which is having a certain different folds. You can observe here. So there are number of folds present in esophagus. These are the folds. So these folds are responsible for sliding or giving food in forward direction, or it just passes the food to the stomach. And this esophagus and the stomach opening, esophagus and sorry, posterior part, esophagus posterior part and stomach anterior part, या फिर हम बोल सकते हैं कि esophagus के end पे एक ओसोफिशियल वॉल्व होता है. दो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो गार्ड करते हैं ओसोफेगस की ओपनिंग को इनटू द स्टमक, एंड फूड को पास किया जाता है इनटू द स्टमक. स्टमक अब होगा 2 टाइप का, यानी हम सर्टेन पार्ट ऑफ स्टमक को बोलेंगे कार्डियक स्टमक, एंड द लैटरल पार्ट विल बी कॉल्ड एज पोलेरिक स्टमक.
तो जो कार्डियक स्टमक होगा वहाँ पे भी फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे, सेम एज जो जैसे ओसोफेगस में है वैसे ही। एंड उसका काम भी होगा कि वो जो फूड मटेरियल को है वो उसको पास करेगा टू द पोलेरिक स्टमक, एंड दिस पोलेरिक स्टमक विल ओपन इनटू द ओपनिंग। और द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है हमारे स्कोलेडॉन के बॉडी का इज दैट बर्सा एंटियाना। So this is the characteristic feature of Scoliodon. This will be present only in Scoliodon digestive system. अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कार्डियक स्टमक है वो एसिडिक पीएच का होता है, उसमें जो लिक्विड होता है HCl होता है वो एसिडिक होता है, एंड जो भी फूड मटेरियल होता है तो मेन डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक से। तो फूड मटेरियल यहाँ पे जो है एसिडिक पीएच में आने के बाद ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड टाइप ऑफ दिस स्कोलेडॉन, तो इट डज नॉट जस्ट च्यू इट्स फूड मटेरियल, इट डायरेक्टली सॉलोज द बाइट्स ऑफ दैट फूड मटेरियल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कोलियोडॉन। तो जस्ट बिकॉज के वो डायरेक्टली बाइट स्वेलो करता है, मतलब वो पूरा का पूरा अपने प्रे को वैसे ही खा रहा है, उसको चबा नहीं रहा है, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, कार्डियक स्टमक एंड पोलेरिक स्टमक में उसका ब्रेक डाउन होगा, ब्रेकिंग होगी फूड मटेरियल की। सो दिस इज द कार्डियक स्टमक, दिस इज द कार्डियक स्टमक एंड दिस इज द पोलेरिक स्टमक। पोलेरिक स्टमक यहाँ पे देख सकते हो, एंड इट इज़ नॉट हैविंग दैट मच फोल्ड्स, इट इज़ जस्ट हैविंग अ स्लाइड स्मूथ लाइनिंग। तो यहाँ पे होगा ये सब फिर यहाँ पे पोलेरिक वॉल प्रेजेंट है जो ओपन होती है डायरेक्टली इनटू द बर्सा एंटियाना। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्सा एंटियाना, तो बर्सा एंटियाना में क्या होगा, बर्सा एंटियाना में भी जो है फूड का जो डाइजेशन होगा वो पास किया जाएगा और फूड पास किया जाएगा टू द इंटेस्टाइन। नाउ द इंटेस्टाइन ऑफ दिस कोलेडॉन इज हैविंग अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे दूसरा एक और इमेज है। सो दिस इज द इमेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन। यहाँ पे देख सकते हो कि स्पाइरल लाइनिंग है, यहाँ पे एक स्पाइरल वे में और अपीयरेंस में ये इंटेस्टाइन प्रिपेयर्ड है। जो इंटेस्टाइन है उसका एंटीरियर पार्ट जो है वो ओपन होता है इनटू द मतलब उसमें ओपन होते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स इंटेस्टाइन के एंटीरियर पार्ट्स में, जैसे कि बाइल डक्ट, लीवर एंड पैंक्रियास की ओपनिंग यहाँ होगी इनटू द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो इंटेस्टाइन में क्या होगा, अभी बाइल जूस है, मतलब वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, उसमें जो फूड को वो अल्कलाइन फॉर्म में, या फिर हम बोल सकते हैं कि फूड को वो एसिडिक पीएच से होके आया है तो उसको वो अल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट करता है, फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन करता है। और यहीं पे पैंक्रियास का भी सिक्रीशन आता है, लीवर का सिक्रीशन आएगा बाइल जूस, और पैंक्रियास का सिक्रीशन आएगा पैंक्रेटिक जूस, जिसमें ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेजेज एंड बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन ये सब प्रेजेंट होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनको कंपाउंड फॉर्म से अमीनो एसिड्स में यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अमाइलेजेस का काम है कि कार्बोहाइड्रेट्स को वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लाता है। लाइपेजेस कन्वर्ट्स द लिपिड्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू द सिंपल फॉर्म। तो यहाँ पे इन शॉर्ट जो है इसको हम बोलते हैं स्क्रोल वॉल बोलते हैं, या इसको स्पाइरल वॉल भी बोला जाता है। ये जो इंटरनल स्पाइरल लाइनिंग आप देख रहे हो इनटू द इंटेस्टाइन, इनसाइड द इंटेस्टाइन, तो ये स्पाइरल वॉल या स्क्रोल वॉल जो है इसके थ्रू जैसे जैसे हमारा फूड ट्रैवल करेगा वो ब्रेक डाउन होता जाएगा एंड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। और यहाँ ये जो स्पाइरल लाइनिंग है ये ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है यानी जो
यूजफुल प्रोडक्ट है फॉर द बॉडी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे स्पाइरल लाइनिंग है, यानी जितना घूम के, जितना स्लोली, जितने टाइम से वो पास करेगा, उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा इनटू द इंटेस्टाइन वॉल्स। इंटेस्टाइन वॉल्स का काम क्या होता है कि वो जो फूड का इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद इंटेस्टाइन ओपन होगा इनटू द रेक्टम। रेक्टम क्या है? रेक्टम इज अ पार्ट विच विल हैव अ रेक्टल ग्लैंड ऑन दिस। तो जब हम रेक्टल ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो इसका फंक्शन अननोन है, बट सर्टेन साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि इसका काम जो है फूड मटेरियल में रिमेनेंट जो या फिर बचा कुछ जो वाटर है उसको ऑब्जॉर्व करने का काम रेक्टल ग्लैंड करता है, अकॉर्डिंग टू सर्टेन साइंटिस्ट। ये सब का बोलना नहीं है। ओके, तो रेक्टल जो है वो रेक्टम जो है वो ओपन होता है इनटू द एनस, एंड एनस के थ्रू ये ओपन होता है क्लोइका में, और क्लोइकल अपर्चर के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय दिस कोलेडॉन। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कोलेडॉन। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।